friends, welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss the breakdown in solids. Before going into detail of lecture, let me give you a brief introduction of what is meant by breakdown in electrical system. Electrical breakdown or simply dielectric breakdown is a process which occurs when an electrical insulating material is subjected to high voltages and it loses its insulation properties and become electrical conductor, and as a result electric current start flowing through it. The insulation material which is used in power system or electrical system can be solid, liquid or gases. The gases breakdown and the liquid breakdown lecture links are available in the description. You can view it from there. Now coming back to our topic, that is breakdown in solids. Solids play a very important role in power systems or electrical system because they are used not only as an insulation material but they are used as a supporting structure. A good solid dielectric should have low dielectric loss. The dielectric loss is actually associated with the loss factor, and loss factor is linked with the power factor. So, lower the dielectric loss, better will be the power factor. Next one is high mechanical strength. As I have mentioned before, that the solid insulation or the solids not only act as insulation but they also provide mechanical support to the structure. So solid must have a high mechanical strength so that it can bear or withstand the weight of structure. And solid must be free from the gaseous impurities. This thing I have explained in the breakdown of solid liquids and breakdown of gases, that there should not be any impurities in the insulation, because if there are impurities they will affect the overall dielectric strength of the material. And solid must be resistant to the thermal and chemical corrosions. This is because the solids are mostly used in the outdoor environment, so they are subjected to different temperature conditions or different environmental conditions, just like high temperature, low temperature, rain, moisture, humidity. So solid must be resistant to the thermal and chemical corrosions. Next one is solid dielectric have high breakdown strength as compared to liquid and gases. This is a very important point for which solid is preferred over liquid and gases. It is because solids the molecules are tightly bounded and the bonds are very difficult to break, and if the bonds are not break, then the solid will keep its insulation strength. Next one is the when the breakdown of the solid that permanently damaged, while gases are fully but liquids are partially recovered when the electric field is removed. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें सॉलिड जो है वो गैसेस और लिक्विड्स से थोड़ा सा कम प्रेफर्ड किया जाता है। मींस यहाँ पे एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि जब सॉलिड पे ब्रेक डाउन होता है तो वो अपनी आपको परमानेंटली डैमेज हो जाता है, ठीक है। मींस वो अपनी इलेक्ट्रिकल जो स्ट्रेंथ है, अपनी इंसुलेशन स्ट्रेंथ जो है वो परमानेंटली लूज़ कर देता है। इसके मुकाबले में जो गैसेस और लिक्विड्स होते हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को अपनी जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसको रिकवर कर सकें। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप रिमूव करेंगे तो उसकी जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो रिकवर हो जाएगी। इसमें लिक्विड जो है वो अपनी आप स्ट्रेंथ जो है पार्शियली रिकवर करती है, और जो गैसेस हैं वो अपनी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो परमानेंटली मतलब कंप्लीटली रिकवर कर सकती हैं। लेकिन जो सॉलिड्स हैं वो अपनी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो परमानेंटली लूज कर देते हैं एंड वो इलेक्ट्रिकली डैमेज हो जाते हैं। जो सॉलिड की डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है, सॉलिड मटेरियल की डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है एम्बिएंट टेम्परेचर है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया, जैसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसी तरह बॉन्डिंग जो है वो अफेक्ट होगी,
नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमिडिटी की वजह से रस्टिंग का फिनोमेना हो सकता है, ठीक है, और ह्यूमिडिटी की वजह से काफ़ी और रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस भी हो सकते हैं, और ये क्या होते हैं ये आगे चलते हैं हम इसको डिस्कस करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, इम्प्योरिटीज ऑफ और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स, ठीक है, जित अदर इम्प्योरिटीज होंगी या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स होंगे तो उसकी बॉन्डिंग टूटने में ईजिली वो उसकी बॉन्डिंग टूट सकेंगी, तो इम्प्योरिटीज और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ एसी है या डीसी इम्पल्स वोल्टेज पे भी उसकी डायरेक्टेड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, ठीक है, और प्रेशर बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स पे डायरेक्टेड स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है सॉलिड्स की। द ब्रेकडाउन ऑफ सॉलिड डायरेक्टेड डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज अप्लाइड एंड द टाइम फॉर विच द वोल्टेज इज अप्लाइड। इस पॉइंट की बेसिस पे सॉलिड ब्रेकडाउन्स की आप कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, तो सॉलिड की डिफरेंट ब्रेकडाउन्स की कैटेगरीज हैं, तो अपॉन दिस थिन कितनी वोल्टेज हैं और कितनी देर के लिए अप्लाई की गई है, इस बेसिस पे आपने सॉलिड ब्रेकडाउन को कैटेगराइज किया है, एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ सॉलिड। जी नेक्स्ट हमारे पास है जो सॉलिड इंसुलेशन है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, मीन्स जो एक सॉलिड इंसुलेशन के अंदर होनी चाहिए जो उसको बेहतर बनाती है, तो उसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो है हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस। अब जितनी इंसुलेशन रेजिस्टेंस हाई होगी उतना बेहतर वो सॉलिड इंसुलेशन ऐड करेगा। नेक्स्ट वन इज़ हाई डायरेक्टेड स्ट्रेंथ, जितनी बेहतर डायरेक्टेड स्ट्रेंथ होगी उतना ही वो बेहतर एज अ इंसुलेशन मटेरियल ऐड करेगा। नेक्स्ट वन इज़ गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, क्योंकि सॉलिड को एज अ मैकेनिकल सपोर्ट भी ऐड करना होता है, तो इसलिए उसको इलास्टिक उसके अंदर इलास्टिसिटी होनी चाहिए, और उसको रिजिड इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि वो मैकेनिकल वेट की वजह से टूट जाए। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय केमिकल्स अराउंड, डेफिनेटली सॉलिड्स जो हैं मेजॉरिटी ऑफ द सॉलिड इंसुलेशन आर यूज्ड इन आउटडोर कंडीशंस, सो सॉलिड्स को अपन अफेक्ट नहीं होना चाहिए बाय द केमिकल्स विच आर अराउंड इट। इट शुड बी नॉन हाइड्रोस्कोपिक, एग्जैक्टली वो वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, उसको सॉलिड इंसुलेशन जो है उसको अफेक्ट नहीं होनी चाहिए उसकी इंसुलेशन प्रॉपर्टीज बाय द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉलिड्स हैं जो यूज़ होते हैं इन द पावर सिस्टम, जिसमें सबसे पहला है वल्कनाइज्ड रबर, ब्यूटाइल रबर, सिलिकॉन रबर, न्यूप्रीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, इम्प्रेगनेटेड पेपर, मीता, सेरामिक्स, ग्लास, एपॉक्सी रेजिन्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉलिड मटेरियल्स हैं जो कि पावर सिस्टम में यूज़ होते हैं एज अ इंसुलेशन एंड एज अ सपोर्ट स्ट्रक्चर। इसमें ये जो कुछ इंपॉर्टेंट है ये वल्कनाइज्ड रबर, ब्यूटाइल रबर, सिलिकॉन रबर, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इधर से सिरेमिक और ग्लास। तो इनके बारे में डिटेल जो है मेरे लेक्चर में मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से इनके बारे में डिटेल देख सकते हैं, इनकी इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ और इनके बारे में जो बाकी डिटेल हैं वो आप उस लिंक में जाते देख सकते हैं, उस वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन जो है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। इस कमीशन ने सॉलिड इंसुलेशंस को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है, उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब वो क्या कैटेगरीज हैं हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहली कैटेगरी है क्लास वाई। अब क्लास वाई तले जो टेम्परेचर रेंज डिफाइन है या टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन डिफाइन है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इस क्लास के अंदर जो इंसुलेशन मटेरियल यूज़ होते हैं वो है नेचुरल रबर, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पेपर, कॉटन, सिल्क। सिल्क जो है वो विदाउट इम्प्रेगनेशन होनी चाहिए। तो ये है क्लास वाई जिसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट इज क्लास ए। अब क्लास ए तले जो टेम्परेचर डिफाइन है वो है 105 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसमें भी ये वाई सेम वाई की तरह ही है, लेकिन आप इसको एज अ इम्प्रेगनेटेड मटेरियल्स भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्लास ई। क्लास ई के लिए जो टेम्परेचर डिफाइन है वो है 120 डिग्री सेंटीग्रेड,
और इस क्लास में जो मटेरियल लाए करते हैं वो हैं पॉलीइथाइलिन, टेरीफिटाइलेट, सेलुलोज, ट्राइसेरेट, इसमें ट्राइसेट्रेट, पॉलीविनाइल एसीटेट, एनामल, ठीक है। ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं, ये यूज़ होते हैं एज अ इंसुलेशन और ये लाए करते हैं क्लास ई में। नेक्स्ट वन इज़ क्लास बी। क्लास बी तले जो टेम्परेचर रेंज डिफाइन है वो है 130 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस क्लास बी के अंदर जो आते हैं इंसुलेशन वो है बेटालाइट, बिटमिनाइज एस्बेस्टॉस, फाइबर ग्लास, मीता एंड पॉलिएस्टर एनामल्स। क्लास एफ है हमारे पास, और इस तरह जो टेम्परेचर डिफाइन है वो है 155 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे जस्ट लाइक क्लास बी मटेरियल यूज़ होते हैं, मींस ये बेटालाइट, बिटमिनाइज एस्बेस्टॉस, फाइबर ग्लास, मीता, पॉलिएस्टर एनामल। लेकिन यहाँ पे आप इसको एज आ एपॉक्सी बेस्ड रेजन्स भी ले सकते हैं, मीन जो क्लास एफ है आप उसमें एपॉक्सी बेस्ड रेजन्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लास एच। क्लास एच में हमारे पास जो टेम्परेचर रेंज डिफाइन है वो है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये भी जस्ट लाइक क्लास बी मटेरियल्स हैं, लेकिन इसमें जो एडिशन है वो है सिलिकॉन रेजिन बाइंडर थी और सिलिकॉन रबर, और साथ में एरोमेटिक पॉलीएमाइड थी, आप एडिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लास सी। क्लास सी के लिए जो टेम्परेचर डिफाइन है वो है ग्रेटर देन 180 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये भी जस्ट लाइक क्लास बी मटेरियल्स हैं, लेकिन इसमें जो फ़र्क है वो है आप इसमें सूटेबल नॉन ऑर्गेनिक बाइंडर यूज़ कर सकते हैं, टेफलॉन यूज़ कर सकते हैं, एंड अदर हाई टेम्परेचर पॉलीमर जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो एडिशन है, जिस तरह आपको यहाँ में मैंने बताया क्लास बी थे ये जो मटेरियल्स हैं, तो इन मटेरियल्स के साथ जब आप ये चीज़ें ऐड कर देते हैं, मींस यहाँ पे एपॉक्सी बेस्ड रेजन ऐड करें और यहाँ पे सिलिकॉन बाइंडर्स आप ऐड कर दें या एरोमेटिक पॉलीअमाइड्स ऐड कर दें, ठीक है, तो ये बेसिकली उसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये फिर हाई टेम्परेचर में यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो सॉलिड इंसुलेशन यूज़ होती है, मींस सॉलिड एप्लीकेशन, सॉलिड इंसुलेशन की क्या एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में या पावर सिस्टम में, तो यहाँ पे हम वो उसको देखते हैं तो सॉलिड इंसुलेशन कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो सॉलिड इंसुलेशन जो है हमारे पास पावर ट्रांसफार्मर में यूज़ हो सकती है, और सड़तर ब्रेकर में यूज़ हो सकती है, रोटेटिंग कोई भी रोटेटिंग मशीन हो उसमें एज अ सॉलिड इंसुलेशन जो है ऐड कर सकती है, यूज़ हो सकती है। अगेन द बुशिंग, इसमें कैपेसिटर बुशिंग भी आती है और ट्रांसफार्मर बुशिंग दोनों आती हैं, ठीक है। पावर केबल्स के अंदर सॉलिड इंसुलेशन मटेरियल यूज़ हो सकते हैं, और पावर कैपेसिटर्स में सॉलिड इंसुलेशन जो है वो यूज़ हो सकती है। ये नेक्स्ट हमारे पास हैं सॉलिड्स की ब्रेक डाउन में डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जैसे कि आपको पहले पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि ब्रेक डाउन्स ऑफ सॉलिड जो हैं उसमें टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज मीन्स कितनी देर के लिए कितना वोल्टेज अप्लाई किया दिया है उसकी बेसिस पे आपने सॉलिड की ब्रेक डाउन को कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहले जो हमारे पास ब्रेक डाउन की कैटेगरी है वो है इंट्रिंसिक ब्रेक डाउन। तो इंट्रिंसिक ब्रेक डाउन तो आप फर्दर कैटेगराइज या डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डाउन में या एवालांच और स्टीमर ब्रेक डाउन में। अब एवालांच, स्टीमर या इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डाउन और सिंपली इंट्रिंसिक ब्रेक डाउन में वोल्टेज की मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत हाई होती है, लेकिन वोल्टेज का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत लेस होता है, और आप ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। ये इन डिफरेंट टाइप्स जो हैं ये वोल्टेज की बेसिस पे जो हमने कैटेगराइज किए हैं वो यहाँ पे ग्राफ के अंदर शो किया दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंट्रिंसिक ब्रेक डाउन के लिए वोल्टेजेस जो हैं वो बहुत हाई हैं, लेकिन जो टाइम है वो बहुत लेस है। तो नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेक डाउन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेकडाउन के लिए भी वोल्टेजेस जो हैं कंपैरेटिवली हाई होते हैं और जो टाइम ऑफ एप्लीकेशन है वो लेस है। नेक्स्ट कैटेगरी इज ट्रेन एंड ट्रैक्शन ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये और हमारे पास नेक्स्ट है थर्मल ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रोकेमिकल ब्रेकडाउन।
तो इलेक्ट्रोकेमिकल ब्रेकडाउन के लिए आप देख सकते हैं टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है और वोल्टेजेस जो हैं वो काफ़ी कम रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं सॉलिड थी, ब्रेकडाउन थी। हम अब इनको बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे डिटेल में। The first type of breakdowns in the solid is known as the intrinsic breakdown. In an intrinsic breakdown, voltage's magnitude is kept high and the duration of applied voltage is kept very low. और एक अंदाजे के मुताबिक जब भी हाई वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं और उसका ड्यूरेशन जो है वो 10⁻⁻8 सेकेंड्स होता है, तो सॉलिड डाइलेक्ट्रिक की इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होती है और इंक्रीज होते होते एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचती है या एक मैक्सिमम अपर लिमिट जो है वो वहाँ पर पहुंचती है और इस लिमिट को बोला जाता है इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ। इस लिमिट के बाद जो है सॉलिड का ब्रेक डाउन हो जाता है और अभी तक किसी भी सॉलिड मटेरियल की जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ रिकॉर्ड की गई है वो है 15 मेगावोल्ट पर सेंटीमीटर और ये रिकॉर्ड की गई थी फॉर पॉलीविनाइल अल्कोहल्स और टेम्परेचर जिस पे ये स्ट्रेंथ अचीव हुई थी वो था -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा जो सॉलिड इलेक्ट्रिक्स की मैक्सिमम लिमिट जो है वो अचीव हो जाती है नॉर्मली 5 मेगावोल्ट पर सेंटीमीटर से 10 मेगावोल्ट पर सेंटीमीटर के बीच में सॉलिड्स की डाइलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम अचीव हो जाती है, मींस इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ अचीव होती है। सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स में नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा उसमें स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शंस भी होती हैं, मीन्स उससे बॉन्डिंग में इशू हो सकता है, ठीक है, बॉन्ड्स लूज हो सकते हैं। इसके अलावा उसमें सॉलिड इलेक्ट्रिक में इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, इम्प्योरिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर भी हो सकता है, सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकता है, कैविटीज़ भी हो सकती हैं, गैस पॉकेट्स हो सकती हैं। तो किसी भी तरह की इम्प्योरिटी या स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन या जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं इनकी वजह से सॉलिड्स में ब्रेक डाउन होता है। अब जो इंट्रिंसिक ब्रेक डाउन है उसको आप दो कैटेगरियों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डाउन एंड सेकंड वन इज़ एवालांच और स्ट्रीमर ब्रेक डाउन। अब चूंकि इंट्रिंसिक ब्रेक डाउन जो है वो बहुत कम ड्यूरेशन में होता है और ये एज्यूम किया जाता है कि उसकी नेचर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक होगी और इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से फिर फर्दर ये एज्यूम किया जाता है कि उसमें जो फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में। इसके अलावा जब भी आप हाई वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं, हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं, तो यही जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एनर्जी गेन करते हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल फील्ड और अपना एनर्जी गैप जो है उसको क्रॉस करते हैं और बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और जब भी कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो इस टाइम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फिर रेडी होते हैं फॉर द कंडक्शन प्रोसेस। And when this process is repeated, more and more electrons become available in the conduction band which leads to the breakdown. Definitely ये प्रोसीजर जो है वो रिपीट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी गेन करते हैं और अपॉन द कोलिजन्स वो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं और ट्रांसफ़र करने की वजह से वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच में एक कंडक्शन पाथ बना देते हैं जिसकी वजह से जो सॉलिड मटेरियल है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन की है एवालांच या स्ट्रीमर ब्रेकडाउन। अब जैसा तो मैंने आपको पहले बताया था सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो जब भी आप हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं तो यही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हाई एनर्जी गेन करते हैं और हाई एनर्जी गेन करने के बाद ही जब एटम के लैटिस को हिट करते हैं या एटम के लैटिस से कोलिजन्स करते हैं तो वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स का काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से ब्रेक डाउन ऑकर होता है। और ब्रेक डाउन क्यों ऑकर होता है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच में एक ब्रिज सा बना देते हैं ड्यू टू द मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एवलॉन्च। और इसी तरह जब भी एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है फ्रॉम द कैथोड टू एनोड वो मूव करता है एंड ड्यूरिंग दिस मोशन वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लूज करता है अदर वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ और उसकी कोलिजन्स होती हैं।
ठीक है, या एनर्जी देन भी कर सकता है फ्रॉम द कैथोड टू एनोड, मींस फ्रॉम कैथोड से एनोड उसकी मूवमेंट के ड्यूरेशन में वो एनर्जी देन भी कर सकता है और एनर्जी लूज भी कर सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन द एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सीड द लैटिस आयनाइजेशन पोटेंशियल an additional electron will be liberated due to collision of the first electron, and this process repeats itself and resulting in the formation of an electron avalanche. एग्जैक्टली यही चीज़ थे, जब भी इलेक्ट्रॉन ने मूवमेंट करनी है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी देन भी कर सकता है, एनर्जी लूज भी कर सकता है, और जब वो इतनी सफिशेंट एनर्जी देन कर ले तो उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल से एनर्जी ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज़ होंगे या इलेक्ट्रॉन जो हैं रिलीज़ होंगे और कंडक्शन का प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और ब्रेक डाउन होगा व्हेन द एवलांच एक्सीड्स अ सर्टेन क्रिटिकल साइज। तो जब इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होते होते मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाएगी तब उस टाइम ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, ये 1 2 3 4 ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। अब देखते हैं हर स्टेज में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एक इलेक्ट्रॉन एवलांच हो रहा है, मींस एक इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, दो से चार हो रहे हैं, सो ऑन। ये देख लें कंडक्शन पाथ बन जाता है। तो ये इस चीज़ को इलेक्ट्रॉन एवलांच या स्टीमर ब्रेक डाउन जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेक डाउन। जब भी एक सॉलिड इलेक्ट्रिक मटेरियल को आप हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं तो सॉलिड के सरफेस पे ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो इंड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। इन ऑपोजिट चार्जेस की वजह से सॉलिड मटेरियल पे दो ऑपोजिट सरफेसेस जो हैं वो बन जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ चार्जेस, ठीक है, दो ऑपोजिट सरफेसेस बन जाते हैं। अब इन ऑपोजिट सरफेसेस की वजह से उस सॉलिड मटेरियल पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्रेसिव फोर्सेस बोला जाता है। इसके अलावा सॉलिड इंसुलेशंस पे, ये सॉलिड मटेरियल्स पे एक और भी फोर्स अप्लाई होती है जिसको बोलते हैं मैकेनिकल विथस्टैंड स्ट्रेंथ या मैकेनिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये फोर्स जो होती है बेसिकली इसमें सॉलिड मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो इंक्लूड होती है। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन तब होता है जब ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हों, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्रेसिव फोर्सेस जो हैं वो बराबर हों मैकेनिकल विथस्टैंड स्ट्रेंथ पे। नॉर्मल कंडीशंस में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्रेसिव फोर्सेस जो हैं वो मैकेनिकल विथस्टैंड फोर्सेस से लेस होती हैं, या मैक्सिमम जो है इक्विलिब्रियम अचीव होता है जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हों। लेकिन जब भी, याद रखें, जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्रेसिव फोर्सेस मैकेनिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से एक्सीड कर जाएगी तो उस टाइम पे आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेकडाउन जो है वो अकर हो जाएगा। अब जैसे थे हमारे पास एक सॉलिड मटेरियल है जिसकी इनिशियल थिकनेस हमारे पास यहाँ पे डी नॉट है, और इसको अगर इस पे वोल्टेजेस अप्लाई करें, ठीक है, वोल्टेज वी अप्लाई करें तो इसकी जो थिकनेस है वो रिड्यूस हो जाती है, या थिकनेस में जो चेंज आता है, और न्यू थिकनेस जो है वो हमारे पास यहाँ पे डी के साथ शो की गई है। तो इस कंडीशन में इस सॉलिड मटेरियल पे जो कंप्रेसिव फोर्सेस होंगी वो डिनोट होती हैं एफ से, एंड दैट फोर्स विल बी इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू वी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर। Here F is the compressive forces, ठीक है, electrostatic compressive force, epsilon naught is the relative permittivity of free space, और epsilon r is the relative permittivity of the specimen जो आपने यूज़ किया है। v स्क्वेयर v जो है वोल्टेजेस हैं जो आपने अप्लाई किए हैं, और d is the thickness of the material। इस कंडीशन में जो मैकेनिकल कंप्रेसिव फोर्सेस होती हैं उनको आप शो करते हैं एफ एम से, दैट इज़ मैकेनिकल कंप्रेसिव फोर्स, और अगर मैथमेटिकली आप उसी एनालिसिस करें तो दैट इज़ गिवन बाय द यंग मॉडुलस इनटू नेचुरल लॉग डी नॉट ओवर डी, वेयर डी नॉट इज़ द इनिशियल थिकनेस एंड डी इज़ द चेंज इन द थिकनेस।
अब इसमें जो यंग मॉडुलस, ये आपके सामने जो दैमा शो किया दिया है, ये बेसिकली आपने अर्ली क्लासेस में पढ़ा था। दिस इज बेसिकली द रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ये तो रेशियो है जो रेशियो बनती है बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब नॉर्मल कंडीशन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्रेसिव फोर्सेस हैं ये लेस होंगी इस मैकेनिकल कंप्रेसिव फोर्सेस से, लेकिन इक्विलिब्रियम अचीव होता है जब ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी। तो हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन को लेकर चलते हैं जिसमें ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वेट कर दिया। इस इक्वेशन से हमने वी स्क्वेयर एक साइड पे कर देंगे और वी स्क्वेयर के अलावा जो भी टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड पे ले आएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो फैक्टर है 2 इंटू यन मॉडुलस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये सारा जो है ये कांस्टेंट है, इनकी जो वैल्यूज हैं ये फिक्स होती हैं। तो हमने इन सब जो फिक्स्ड वैल्यू हैं उनको बराबर कर दिया यहाँ पे के के बराबर। तो हमारे पास जो नेट इक्वेशन बनी वो बनी वी स्क्वेयर इज इक्वल टू के डी स्क्वेयर नेचुरल लॉग डी नॉट ओवर डी। अब इस इक्वेशन को, ये जो आपके सामने इक्वेशन है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी। अब विद रिस्पेक्ट टू डी क्यों चेंज डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? इट इज़ बिकॉज दे वोल्टेजेस दे अप्लाई करने से जो मटेरियल की थिकनेस है, मींस जो डी है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। वोल्टेज से बढ़ाने से डी में फ़र्क पड़ रहा है, तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू डी आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को। वी स्क्वेयर इज इक्वल टू के डी स्क्वेयर इंटू नेचुरल ऑफ डी नॉट ओवर डी। इस इक्वेशन को आपने विद रिस्पेक्ट टू डी डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब हमारे पास जो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो नई इक्वेशन बनती है वो बनती है जी, वो बनती है हमारे पास ये इक्वेशन, ठीक है, 2v इंटू डी वी ओवर डी डी और इज इक्वल टू के हमारे पास कांस्टेंट था तो वो बाहर चला जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर आ गया और अंदर जो है हम उस पर सिंपल प्रोडक्ट रूल जो है वो लगा देते हैं, ठीक हो गया। अब चूंकि दो फंक्शंस हैं तो हम उसे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बनती है हमारे पास डिफरेंशियल डेरिवेटिव थी वो ये बनती है। इसमें ये वाला जो फैक्टर है, ठीक है, डी वी ओवर डी डी, ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरा जो फैक्टर है ये ज़ीरो हो जाएगा। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह बनेगी, 2d इंटू नेचुरल और डी नॉट ओवर डी इज इक्वल टू डी। यहाँ से आपके पास इस 2d तो आप यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो आपके पास नेचुरल ऑफ डी नॉट ओवर डी इज इक्वल टू 1/2। 1/2 इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे और एक्सपोनेंशियल लेंगे तो ये आपके पास इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, डी ओवर डी नॉट इज इक्वल टू 0.6। अब इस डी ओवर डी नॉट इज इक्वल टू 0.6 का क्या मतलब है? तो आप कोई भी वोल्टेजेस अप्लाई करें, जितनी मर्जी आप वोल्टेज अप्लाई करें सॉलिड मटेरियल को, ये याद रखते हैं कि उस मटेरियल की जो थिकनेस है वो 40% से लेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी the reduction in the thickness of specimen cannot be more than 40%। मीन्स आपने जो मर्जी वोल्टेजेस अप्लाई करें, जितने मर्जी वोल्टेजेस अप्लाई करें, लेकिन ये बात मेक श्योर करें कि उस स्पेसिमेन की जो थिकनेस है वो ओरिजिनल से 40% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 40% से लेस हुई तो उस टाइम पे उस की जो मैकेनिकल फोर्सेस हैं वो कम हो जाएंगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे ब्रेक डाउन जो है अतर हो जाएगा और जो है सॉलिड मटेरियल है वो डैमेज हो सकता है। तो द हाईएस्ट एपरेंट स्ट्रेंथ इज देन ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग डी इज इक्वल टू 0.6 डी नॉट। तो ये मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है, ये वैल्यू आप पुट करते हैं क्योंकि डी जो था हमारे पास चेंज इन द थिकनेस की वैल्यू थी और चेंज इन द थिकनेस जो है वो 40% से लेस नहीं हो सकती, इसलिए हम इस वाले फैक्टर को पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में। तो हमारे पास जो के की वैल्यू थी वो एक्चुअली ये हमने के की वैल्यू वापस सब्सटीट्यूट दी है जो कांस्टेंट हमने लिया था, और नाउ हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो है वी ओवर डी इज इक्वल टू के की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास नेट इक्वेशन ये आई। और जो नेक्स्ट हमारी थी वो नेचुरल लॉग ऑफ 1.67,
ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम इसमें ये वैल्यू जो है डी इज इक्वल टू 0.6 डी नॉट, ये वाली वैल्यू अगर आप इसको सब्सटीट्यूट करते हैं तो आपके पास जो नेट इक्वेशन आती है वो बनती है वी ओवर डी नॉट। अब वी ओवर डी नॉट जो है वो है ई ए के बराबर, ठीक है, बिकॉज वोल्टेज ओवर डी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी ओवर डी नॉट इज इक्वल टू 0.6, ये 0.6 जो है दूसरी साइड पे जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप इस वाले फैक्टर को सॉल्व करें 2 इंटू नेचुरल आधा 1.67, आपने इसको फैक्टर को सॉल्व करना है, ठीक है, और आपके पास जो नेट इक्वेशन यहाँ पे बनेगी वो होगी एन मॉडुलस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर अंडर द रूट, और इसको आपने 0.6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो ओवरऑल इक्वेशन बनती है आपके पास वो बनती है वी ओवर डी नॉट इज इक्वल टू 0.6 एंड एन मॉडुलस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होल अंडर रूट, या ये वाली जो इक्वेशन है वो ई ए के बराबर है। तो ये रिजल्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन की अगर आप एनालिसिस करें तो आपको ये पता चलेगा कि द ब्रेक डाउन वोल्टेज इज depend upon the Young modulus, which is the ratio of stress over strain. So इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेकडाउन में जो ब्रेकडाउन वोल्टेजेस होते हैं वो एक्चुअली डिपेंडेंट होते हैं यंग मॉडुलस से, एंड यंग मॉडुलस इज अगेन रेशो विच इज़ बिटवीन द स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। नेक्स्ट ब्रेकडाउन की जो टाइप है सॉलिड्स में, दैट इज़ नोन एज द ट्रीन एंड ट्रैथन ब्रेकडाउन। ट्रीन एंड ट्रैथन ब्रेकडाउन जो है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें सॉलिड जो हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो जब भी एक सॉलिड इलेक्ट्रिक को आपने इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस के अंदर रखते हैं या आप उस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं और वो इलेक्ट्रिकल फील्ड काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो नॉर्मली दो किस्म की विजिबल मार्किंग जो है ऑब्जर्व की जाती है ऑन द सॉलिड इलेक्ट्रिकल मटेरियल। अब वो कौन सी मार्किंग है? First one is the presence of conduction path across the surface of insulation, ठीक है। एक जो विजिबल मार्जिन है वो एक कंडक्शन पाथ बन जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द इंसुलेशन। इसके अलावा a path where leakage current passes through the conducting path finally leads to the formation of spark। एक और पाथ होता है फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द इंसुलेशन मटेरियल, मीन इंसुलेशन मटेरियल के अंदर से एक लीकेज करंट का पाथ बनता है, और ओवरऑल जो है वो फिर काफ़ी टाइम बाद एक ब्रेक डाउन का फिनोमेना जो है वो ऑतर करवा देता है। तो दो किस्म के ब्रेड सर्फ जो दो किस्म के विजिबल मार्किंग होती है ऑन द सॉलिड इलेक्ट्रिक when you apply high electrical stress for a long time. The first one is your first visible margin is the presence of conduction path over the surface of insulation, ठीक है। एक सरफेस इंसुलेशन के ऊपर का पाथ होता है और दूसरा जो है इनसाइड द इंसुलेशन, और इनसाइड जो होती है वो थ्रू द लीकेज करंट होती है। अब इन बेसिस पे थे जो कंडक्शन पाथ बना है वो आउटसाइड द इंसुलेशन बना है या इनसाइड द इंसुलेशन बना है, इस बेसिस पे आप ब्रेक डाउन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो जो पहली टाइप है वो है ट्रीन ब्रेक डाउन। अब ट्रीन ब्रेक डाउन जैसे थे इससे नाम से पता चलता है तो ट्रीन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस होगी, ठीक है। तो ट्री से ट्रीन निकला है तो वो ब्रांचेस की सूरत में जो ब्रेक डाउन होता है उसको ट्रीन ब्रेक डाउन बोलते हैं, और ट्रीन ब्रेक डाउन हमेशा इनसाइड द इंसुलेशन मटेरियल होता है, ठीक है। नाउ इफ़ वी स्टडी द डिटेल ऑफ ट्रीन ब्रेक डाउन, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है ट्रीन ऑथर्स ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मटेरियल एट द टिप ऑफ स्पार्क। जब भी सॉलिड मटेरियल पे स्पार्किंग होती है, ठीक है, स्पार्किंग का फिनोमेना होता है, तो उस वजह स्पार्किंग की वजह से सॉलिड मटेरियल की जो सरफेस है उस पर कोलिजन का फिनोमेना होता है। अब कोलिजन की वजह से जो सरफेस है वो रफ हो जाती है, और रफ होने की वजह से सरफेस के ऊपर डर्ट कोई मतलब डर्ट और कोई भी अनवांटेड जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो जमा होना शुरू हो जाती हैं, उनकी इम्प्योरिटीज की कंटेमिनेशन शुरू हो जाती है।
जिसकी वजह से ओवरऑल जो इंसुलेशन की कंडक्टिविटी है वो अफेक्ट होती है, ठीक है। और जिस अगर काफ़ी प्रोलॉन्ग हो जाए ये चीज़, तो इसकी वजह से एक कंडक्शन पाथ जो है ओवर द सरफेस ऑफ इंसुलेशन वो प्रोड्यूस हो जाता है। और वो कंडक्शन पाथ फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड जो है वो एक कंप्लीट ब्रिज की तरह ऐड करता है, जिसकी वजह से इंसुलेशन मटेरियल जो है वो उसका फेलियर हो जाता है और मैकेनिकल फेलियर हो जाता है इंसुलेशन मटेरियल का। और as the time passes, breakdown channels spread through the insulation in an irregular tree-like fashion, leading to the formation of the conducting channel. एग्जैक्टली जब आप का जो इरेगुलर चैनल्स जब बन जाते हैं, ठीक है, कंडक्शन पाथ बन जाता है, तो और आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद वो बढ़ते बढ़ते ट्री लाइक फैशन में, ट्री की तरह वो फ्रॉम वन फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड एक कंप्लीट चैनल बना देता है। और इस चैनल में करंट के फ्लो होने की वजह से ब्रेक डाउन जो है वो ऑकल होता है। So the spreading of spark channel in the form of branches of a tree is known as the tree breakdown, ठीक है। इस फिनोमेना तो ट्री ब्रेकडाउन बोलते हैं, जो ते प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द लीकेज करंट, एंड द लीकेज करंट अराइजेज बिकॉज ऑफ द कोरेजन जो होते हैं वो स्पार्क की वजह से होती है। मीन्स स्पार्क हुआ, स्पार्क की वजह से वो सरफेस पे कोरेजन का फिनोमेना हुआ, कोरेजन की वजह से डल्ट या और अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो जमा होना शुरू हुई। उन अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ की वजह से एक कंडक्शन पाथ बनता है। कंडक्शन पाथ पे जब हाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस अप्लाई होती है तो वो एज अ चैनल जो है वो ऐड करता है और एज अ लीकेज करंट बीच में से फ्लो होता होता आफ्टर सम टाइम वो एक प्योर कंडक्शन पाथ जो है वो बना देता है। और कंडक्शन पाथ जो होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्री होता है, जिसकी वजह से इस सारे फिनोमेना को ट्री ब्रेकडाउन बोलते हैं। अब नेक्स्ट है द ट्रीन ब्रेकडाउन को कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो ट्रीन ब्रेकडाउन कैन बी प्रिवेंटेड बाय हैविंग क्लीन ड्राई अनडैमेज सरफेस एंड क्लीन एनवायरनमेंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, सब आपने जो इंसुलेशन है उस तो मेक श्योर करना है वो किसी भी तरह से डैमेज ना हो, क्योंकि जहाँ पे डैमेज होता है वहीं पे डर्ट और अनवांटेड जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो जमा होना शुरू हो जाएंगी। साथ में आपने मेक श्योर ये करना है जो इंसुलेशन है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। किसी भी किस्म की डर्ट ऊपर नहीं होनी चाहिए, कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। और जो इंसुलेशन जहाँ पे पड़ा है वो एनवायरनमेंट जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अब ट्रेन ब्रेकडाउन बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है इन द कैपेसिटर्स एंड पावर केबल्स, ठीक है। और ट्रेन ब्रेकडाउन ऑकर मोस्टली होता है एट हाई वोल्टेजेस एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द ट्रेन ब्रेकडाउन। ट्रेन फिनोमेना कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व इन द लैब। अगर आप लैब में इस फिनोमेना को ऑब्जर्व करना चाहें तो आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे? बाय अप्लाइंग एन इम्पल्स वोल्टेज बिटवीन पॉइंट इन प्लेन इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक तरफ आपने पॉइंट इलेक्ट्रोड रखना है, नॉर्मली पॉइंट इलेक्ट्रोड जो है हाई वोल्टेज साइड पे होता है और जो प्लेन इलेक्ट्रोड है वो लो वोल्टेज साइड पे होता है, ठीक है। आपने इम्पल्स वोल्टेज अप्लाई करनी है ऑन द पॉइंट प्लेन इलेक्ट्रोड विद द पॉइंट एम्बेडेड इन द ट्रांसपेरेंट सॉलिड डाइलेक्ट्रिक। आपने जो सॉलिड इलेक्ट्रिक है उसकी तरफ आपने पॉइंट इलेक्ट्रोड रखना है। सच एग्जांपल जो है ऐसे डाइलेक्ट्रिक सॉलिड इलेक्ट्रिक की वो है परपेट्स, ठीक है। परपेट्स जो है वो आपको ट्रीन ब्रेकडाउन का फिनोमेना जो है वो देता है जब आप उस पर हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड या इम्पल्स वोल्टेज जो है वो आप अप्लाई करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास ब्रेक डाउन दैट इज़ द ट्रैथन ब्रेक डाउन। ट्रैथन ब्रेक डाउन जैसे थे आपको नाम से पता चलता है ट्रैथ, ठीक है। तो ट्रैथन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट कंडक्शन पाथ यूजुअली कार्बन अक्रॉस द सरफेस ऑफ इंसुलेशन। तो ट्रैथिन का जो फिनोमेना है वो अक्रॉस द सरफेस ऑफ इंसुलेशन होता है, जबकि ट्रीन का जो फिनोमेना है वो इनसाइड द सरफेस इनसाइड द इंसुलेशन बॉडी होता है, ठीक है। ये इन दोनों में डिफरेंस है जो आप लोगों को याद रखना है। ट्रैथन जो है वो आउटसाइड द इंसुलेशन होता है, आउटसाइड द इंसुलेशन बॉडी या ऑन द सरफेस ऑफ इंसुलेशन बॉडी, जबकि ट्रीन का जो फिनोमेना है वो इनसाइड द इंसुलेशन बॉडी होता है। एंड द इंसुलेशन मटेरियल मस्ट contain organic substances for ट्रैथन फिनोमेना। ट्रैथन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मीन्स ट्रैथन ब्रेकडाउन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सॉलिड मटेरियल है या सॉलिड इंसुलेशन है वो ऑर्गेनिक होना चाहिए।
तो जब जब भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा तो उसमें ट्रेथिन ब्रेकडाउन जो है वो होगी। ड्यू टू द ट्रेथिन फिनोमिनन द आउटडोर इंसुलेशन शुड नॉट बी ऑर्गेनिक। अब इस ट्रेथिन ब्रेकडाउन को मिनिमाइज करने के लिए जब उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी आउटडोर इंसुलेशन आप यूज़ करते हैं उसको ऑर्गेनिक नहीं होना चाहिए, मीन्स वो कार्बन से नहीं बनना हुआ होना चाहिए। And the rate of trethin can be slowed down by adding filters to the polymer। और अगर आपने ट्रेथिन का फिनोमिना या तो है आप बिल्कुल भी ना करवाएं, तो ना करवाने के लिए आपको मेक श्योर करना थे वो और मटेरियल जो है वो ऑर्गेनिक नहीं होने चाहिए। और अगर आपने वो प्रोसेस तो स्लो डाउन करवाना है तो आपको क्या करना चाहिए, यू हैव टू ऐड फिल्टर्स टू द पॉलीमर विच स्लो डाउन द कार्बनाइजेशन, मीन्स कार्बन की फॉर्मेशन तो स्लो डाउन करते हैं। या आप इसके अलावा मॉइस्चर रिपेलेंट ग्रीसेस भी यूज़ कर सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ इंसुलेशन। Trethin authors even at very low voltage of the order about 10-100 वोल्ट एग्जैक्टली जो ट्रेथिन जो होते सरफेस ऑफ इंसुलेशन पे होती है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं थे आपके हाई वोल्टेजेस हैं, वो लो वोल्टेज पे भी एयर की आयनाइजेशन हो जाती है और वो एक कंडक्शन पाथ बन जाता है ऑन द सरफेस। The voltage which initiates or causes the formation of treth is known as the Trethin index। Trethin index वो voltages होते हैं जिस पे ट्रेथिन का फिनोमिना होता है और स्पार्क की फॉर्मेशन होती है और ब्रेक डाउन का फिनोमिना प्रोड्यूस होता है, इसको ट्रेथिन इंडेक्स बोलते हैं। ये नेक्स्ट जो ब्रेक डाउन की टाइप है, सॉलिड्स में ब्रेक डाउन की टाइप है वो है थर्मल ब्रेक डाउन। थर्मल ब्रेक डाउन जैसे कि आपको नाम से पता चलता है तो यहाँ पे टेम्परेचर या हीट इन्वॉल्व है, तो देखते हैं कि हीट कैसे इन्वॉल्व होती है सॉलिड्स की ब्रेक डाउन होने में। तो याद रखें कि सॉलिड्स डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस बढ़ाने से उसका ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है वो भी बढ़ता है, मीन जैसे जैसे आप थिकनेस सॉलिड मटेरियल थी बढ़ाते जाएंगे तो उसका जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो भी बढ़ता जाएगा, लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता। अप टू अ सर्टेन थिकनेस तो ये पॉसिबल है, ये रिलेशन पॉसिबल है, लेकिन एक सर्टेन थिकनेस होने के बाद ये रिलेशन पॉसिबल नहीं होता। और जब भी आप एक सॉलिड मटेरियल पे या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे आप इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं तो याद रखते हैं उसमें से स्मॉल कंडक्शन करंट जो है वो फ्लो करना शुरू हो जाता है थ्रू द मटेरियल। अब ये जो करंट कंडक्शन करंट है या लीकेज करंट है वो ओवर द सरफेस भी हो सकता है और इनसाइड द मटेरियल भी हो सकता है। अब इस कंडक्शन करंट की वजह से जो मटेरियल है या जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है या सॉलिड सॉलिड इलेक्ट्रिक है वो हीट अप होना शुरू हो जाता है और हीट होते होते उसका जो टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है। अब जो हीट जनरेट हुई है वो सराउंडिंग में ट्रांसफ़र होती है बाय कंडक्शन थ्रू द सॉलिड इलेक्ट्रिक एंड बाय रेडिएशन थ्रू इट्स आउटर सरफेस। अब हीट ट्रांसफ़र की बेसिकली दो यहाँ पे मैकेनिज्म हो सकते हैं, या तो कंडक्शन होगी, कंडक्शन जो है वो थ्रू द सॉलिड इलेक्ट्रिक होगी, या रेडिएशन होगी और रेडिएशन जो है उससे आउटर सरफेस की वजह से होती है। अब इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, इक्विलिब्रियम इज रीच्ड व्हेन हीट यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्लस हीट रेडिएटेड आउट मस्ट बी इक्वल टू द हीट जनरेटेड। जब भी ये कंडीशन होगी तो जिसमें हीट जनरेटेड will be equal to heat used to raise the temperature of dielectric plus heat radiated out। तो जब भी ये दोनों हीट्स जो हैं वो बराबर होंगी तो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। लेकिन जैसे ही ये कंडीशन इम्बैलेंस हुई तो वहाँ पे थर्मल ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हीट जनरेटेड जब भी डीसी वोल्टेजेस आप अप्लाई करते हैं तो उसकी डीसी की वजह से जो हीट जनरेट होती है वो गिवन होती है डब्ल्यू डी सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई स्क्वेयर इंटू सिग्मा, वेयर सिग्मा इज द थर्मल कंडक्टिविटी और ई जो है आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है। और इसी तरह आपके पास जो एसी स्ट्रेस है, ठीक है, जब भी आप एसी अप्लाई करेंगे उसकी वजह से जो हीट जनरेट होती है दैट इज़ गिवन बाय डब्ल्यू ए सी। और मैथमेटिकली उसका जो फार्मूला है वो आपके पास ई स्क्वेयर इंटू एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी, एप्सिलॉन आर इज़ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, टेंजेंट सिग्मा इज़ द लॉस फैक्टर और ये इसकी यूनिट है वॉट पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जो हीट डेसिपेटेड होती है दैट इज गिवन बाय डब्ल्यू टी
और WT की इक्वेशन है वो है C इंटू वी इन सी वी इंटू डी टी ओवर डी टी प्लस डाइवर्जेंट ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ टी। जी, जैसे तो मैंने आपको पहले बताया इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है जब वो हीट्स डेसिपेटेड जो है वो हीट जनरेटेड थे बराबर हो। तो एग्जैक्टली ये चीज़ यहाँ पे है, तो इक्विलिब्रियम इज रीच्ड व्हेन द हीट जनरेटेड, अब हीट जनरेटेड AC से भी हो सकती है DC से भी हो सकती है, लेकिन हीट जनरेटेड बिकम्स इक्वल टू द हीट डेसिपेटेड। तो जब भी ये कंडीशन होगी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, लेकिन जैसे ही WAC या WDC एक्सीड कर जाए WT से, तो उस टाइम पे ब्रेक डाउन ऑकर हो सकता है, एंड दैट ब्रेक डाउन विच विल ऑकर अंडर दिस कंडीशन विल बी नोन एज द थर्मल ब्रेक डाउन। अब थर्मल ब्रेक डाउन जो है वो सेट करती है अपर लिमिट फॉर इंक्रीजिंग द ब्रेक डाउन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। अब थर्मल ब्रेकडाउन की बेसिस पे आप मैक्सिमम लिमिट जो है वोल्टेज थी वो सेट करते हैं, और वहाँ पे आपको टेम्परेचर जो है वो भी एक कॉन्स्टेंट रखना पड़ता है, जिसकी वजह से आप थर्मल ब्रेकडाउन जो है वो पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि जो टेम्परेचर है वो ना सिर्फ इंटरनल कंडीशंस की वजह से राइज हो सकता है, बल्कि एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से भी टेम्परेचर राइज हो सकता है। तो थर्मल ब्रेकडाउन की वजह से आपने वोल्टेज की एक मैक्सिमम लिमिट जो है वो सेट करते हैं। अब अगर ये आपके सामने ग्राफ बना हुआ है जिसमें एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर डिफाइन है और वाई एक्सिस पे हीट जनरेटेड और हीट लॉस्ट डिफाइन है। यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रिकल फील्ड्स हैं, एक E1 है और एक E2 है, और इसमें ये जो स्ट्रेट लाइन है ये बेसिकली न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को शो कर रहा है। अब अगर आप E2 तो देते हैं तो E2 का ग्राफ ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक ये पॉइंट है TA और दूसरा पॉइंट है TB। तो TA से इस साइड पे और TB से ऊपर ये जो लाइंस हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से ऊपर जो जो भी पार्ट है इस टेम्परेचर का, ये इस इलेक्ट्रिकल फील्ड का, तो ये तो वो पॉइंट है जहाँ पे ब्रेक डाउन जो है वो होगा, थर्मल ब्रेक डाउन होगा। लेकिन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये जो कर्व आपको नज़र आ रहा है जो इस स्ट्रेट लाइन से नीचे का पोर्शन है, यहाँ पे थर्मल ब्रेक डाउन जो है वो पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली ये चीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन दी है, एट द फील्ड E2 breakdown will occur both at temperature TA and TB, and between TA and TB the breakdown will not occur। एग्जैक्टली यही चीज़ जब आप इस E1 को देखते हैं तो E1 का हीट इस स्ट्रेट लाइन से जो ग्राफ है वो बहुत दूर है, ठीक है, इसका मतलब है तो ये E1 वो वाला कंडीशन है जिसमें ब्रेकडाउन ऑथर होगा। जी, ये आपका हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास थर्मल ब्रेकडाउन स्ट्रेसेस जो हैं डिफरेंट सॉलिड इलेक्ट्रिक्स की वो दी हुई हैं, और ये स्ट्रेसेस जो हैं अंडर DC एंड अंडर AC तिल आता है, ठीक है, तो DC ते इसमें क्या स्ट्रेस हो दी और AC ते इसमें क्या स्ट्रेस हो दी वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे मटेरियल देते हैं आप, तब हमारे पास है मीका। मीका केस में जो मैक्सिमम थर्मल ब्रेकडाउन स्ट्रेस है इन मेगा वोल्ट पर सेंटीमीटर दैट इज़ 24, और AC के केस में दैट इज़ 7.18। अगर हम रॉक सॉल्ट को देखते हैं तो DC के केस में जो मैक्सिमम स्ट्रेस आती है वो है 38, और AC के केस में 1.4। इसी तरह हाई ग्रेड पोरिसिलीन जो है उसका यहाँ पे DC नहीं दिया हुआ, जबकि AC जो है हमारे पास 2.8 है। और नेक्स्ट ये है सारे मटेरियल जो हैं इसमें, अब कैपेसिटर पेपर जो है उसको अगर आप देखें तो सॉलिड DC तेज में उसकी वैल्यू नहीं दी हुई, जबकि AC तेज में उसकी वैल्यू ये है 3.4 से 4.4 तक दी हुई है। तो ये डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो सॉलिड मटेरियल्स जो इतने पावर सिस्टम में यूज़ होते हैं एज अ इंसुलेशन, और यहाँ पे आपको उनकी थर्मल ब्रेकडाउन जो हैं वो दी हुई हैं, थर्मल ब्रेकडाउन स्ट्रेसेस जो हैं वो दी हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रेकडाउन है सॉलिड्स में वो है केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल ब्रेकडाउन। जैसे कि आपको नाम से पता चलता है कि केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल में कोई केमिकल रिएक्शंस जो है वो इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली जब भी सॉलिड इंसुलेशंस जो है ये सॉलिड मटेरियल्स हाई वोल्टेज के मौजूदगी में आउटडोर कंडीशन में रखे जाते हैं, तो आउटडोर में आपको पता है कि वहाँ पे एयर भी होती है और कोई और गैसेस भी हो सकती हैं जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह।
तो ऐसी गैसेस की मौजूदगी में, ऐसी एयर की मौजूदगी में जो सॉलिड होता है वो अंडर हो जाता है केमिकल चेंजेस में, ठीक है। उसमें केमिकल चेंजेस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो जब ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें मेजर रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन है और हाइड्रोलाइसिस है, तो ऐसे रिएक्शंस की वजह से सॉलिड की डायरेक्ट स्ट्रेंथ जो है वीक हो जाती है और सॉलिड जो है अपनी डायरेक्ट स्ट्रेंथ जो है वो लूज कर देता है और एफिशिएंटली काम नहीं करता। अब हम इसको देखते हैं जो हमारे रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहला जो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज बेसिकली द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी आउटडोर कंडीशंस में, आउटडोर एनवायरनमेंट में आपने सॉलिड इंसुलेशन तो जब आप पुट करते हैं तो उसमें स्पेशली जो सॉलिड इंसुलेशन में रबड़ या पॉलीइथाइलीन जो हैं वो उनमें ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। मींस ऑक्सीजन ऐड होती है और जिसकी वजह से उसके सॉलिड इंसुलेशन की सरफेसेस पे जो हैं वो थ्रेट्स पड़ जाते हैं। अब जब क्रैक्स पड़ जाते हैं तो उसकी वजह से उसमें कैविटीज़ फॉर्म हो जाती हैं और कैविटी फॉर्म होने की वजह से वो सॉलिड इंसुलेशन की जो डायरेक्ट स्ट्रेंथ होती है वो वीक हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है वो है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मींस वाटर एंड लाइसिस मींस ब्रेक डाउन। मींस इसमें वाटर जो है वो अपने आइंस में डिवाइड होता है, ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। when moisture or water vapor are present on the surface of lithodilate, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑथर्स एग्जैक्टली जब भी मॉइस्चर या वाटर सॉलिड आउटडोर इन्वायरमेंट में जो सॉलिड इंसुलेशन होती है उस पर जब भी वाटर या मॉइस्चर पड़ा होगा तो हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से उसमें हाइड्रोलाइसिस का फिनोमिना होगा। अब हाइड्रोलाइसिस का फिनोमिना होने के बाद चूंकि ऑक्सीजन जो है वो ऐड अप हो रही है, उस वजह से वो मटेरियल अपनी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो लूज कर देता है। अब इसमें मेजर जो सॉलिड इंसुलेशन है जो हाइड्रोलाइसिस का फिनोमिना जिसमें होता है उसमें हमारे पास पेपर है, कॉटन, टेप एंड अदर सेलुलोज मटेरियल जो हैं वो स्पेशली प्लास्टिक लाइक पॉलीइथाइलिन वो अपनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है लूज कर देते हैं ड्यू टू वाटर कंटेंट्स। मींस इन मटेरियल्स में जब आप वाटर ऐड करते हैं, वाटर या मॉइस्चर ऐड करते हैं तो ये मटेरियल जो हैं वो अपनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है लूज कर देते हैं। नेक्स्ट आर द केमिकल रिएक्शंस जिनकी वजह से सॉलिड्स की इंसुलेशन जो है वो वीक होती है। इसमें ना सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड की मौजूदगी में ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं बल्कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की एब्सेंस में भी इस तरह के केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं जिसमें सॉलिड की इंसुलेशन स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो सकते। जैसे तो यहाँ पे मेंशन है थे प्रोग्रेसिव केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ इंसुलेशन मटेरियल्स एंड ऑथर ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ प्रोसेसेस सच एज केमिकल instability at high temperature, oxidation and keratin in the presence of air and ozone and hydrolysis due to moisture and heat। डेफिनेटली ये वो सारी कंडीशंस हैं जो एक सॉलिड इंसुलेशन को आउटडोर कंडीशंस में बियर करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो वो जो सॉलिड इंसुलेशन जब भी आउटडोर कंडीशन में होगा, आउटडोर एनवायरनमेंट में पड़ा होगा तो उसको हाई टेम्परेचर जो है वो फेस करना पड़ेगा और उसको एयर की मॉइस्चर वो फेस करनी पड़ेगी और इसी तरह डिफरेंट जो है उसमें केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज हाई सोडा या सोडियम कंटेंट्स जो हैं ग्लास इंसुलेशन शुड बी अवॉइडेड इन द मॉइस्ट एंड डैम्प कंडीशंस। ये दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन विच इट इज स्टेटेड दैट सोडियम कंटेंट या हाई सोडा कंटेंट जो हैं जिसकी वजह से ग्लास इंसुलेशन बनती है, ठीक है, ऐसे मटेरियल्स को आपने अवॉइड करना है ऐसे उन इलाकों में, उन जगहों पे जहाँ पे मॉइस्ट और डैम कंडीशंस हो, ठीक है। मीन्स जहाँ पे मॉइस्ट और डैम कंडीशन हो वहाँ पे आपने ये वाले जो कंटेंट है ये आपने अवॉइड करने हैं। नेक्स्ट इज द केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल डेटोनेशन इंक्रीजेज वेरी रैपिडली विद द टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये केमिकल ब्रेकडाउन या इलेक्ट्रोकेमिकल ब्रेकडाउन के जो चांसेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। The last type of breakdown which occurs in the solid is known as the breakdown due to internal discharges। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल कंडीशन जिसमें इंटरनल कैविटीज़ या इंटरनल बाउंड्रीज की वजह से सॉलिड की डायरेक्ट स्ट्रेंथ लूज़ होती है और सॉलिड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है उसका। इवन ऑन द लो वोल्टेजेस जो है ये फिनोमिना ऑकर हो सकता है।
अब ये क्या है इसको हम ज़रा देखते हैं। सॉलिड इंसुलेशन मटेरियल कंटेन कैविटीज विद इन द मीडियम, ना सिर्फ कैविटीज विद इन द मीडियम होती हैं बल्कि एट द बाउंड्रीज बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक एंड द इलेक्ट्रोड भी उसमें कैविटीज जो हैं फॉर्म होती हैं। और इन कैविटीज़ में जब कोई भी मीडियम फिल हो जाए, जैसे तो एयर फिल हो जाए, ठीक है, तो उसकी डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वजह से इस सॉलिड मटेरियल की डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है कम हो जाती है, लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन जो है वो फैसिलिटेट होता है। These cavities are generally filled with the medium of lower dielectric strength, especially इसमें जो है एयर हमारे पास कंसिडर की जाती है, and the dielectric constant of the medium in the cavities is lower than that of the insulation. The electric field strength in the cavities is higher than across the dielectric, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, चूंकि डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उस कैविटीज़ की कम होती है, इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो हायर होती है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द डायलेक्ट्रिक। सो इस वजह से इवन ऑन द नॉर्मल वर्थ इन वोल्टेजेस, ज़रूरी नहीं है कि हाई वोल्टेजेस ही हों, इन इंटरनल डिस्चार्जेस में लो वोल्टेजेस या नॉर्मल वर्थ इन वोल्टेजेस पे भी इन कैविटीज़ के अंदर ब्रेक डाउन का फिनोमेना हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रोसीजर इन द आउटडोर इंसुलेशंस, जिसमें ये ब्रेक डाउन्स होते हैं इंटरनल डिस्चार्जेस की वजह से। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द ब्रेक डाउन्स इन सॉलिड। हमने काफ़ी टाइप्स इसमें डिस्कस की, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का लेक्चर जो है वो सही तरह से समझ आ दिया होगा, एंड आई होप आप लोगों को ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ब्रेक डाउन इन सॉलिड से वो क्लियर होते होंगे। अगर स्टिल आप लोगों का कोई क्वेश्चन है ब्रेक डाउन इन सॉलिड से रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़ एंड जज़ाकल्लाह।